international magazines, anthologies and journals. Many of her stories and poems have been transmitted by Akashvani as well. She was nominated in the list of 78 most well-known authors in India by Forbes for the year 2014, and also received Rabindranath Tagore International Poetry Award, Premchand Puraskar by Ministry of Railways. She also holds a record with Limca Book of Records for highest publication in a year. Presently, she is working as Joint Secretary in UPSC. I welcome you here. And the time is between 15 and 20 minutes. Thank you so much. I'll begin my recitation with a Hindi poem. I write in Hindi as well as English. So this is a poetry from my book मैं हवा हो गई हूँ, published by Authors Press. आज मैंने बादलों को नशे में झूल देखा, लम्हों के खिलते चेहरे पर गजब का नूर देखा। आज मैंने बादलों को नशे में झूल देखा, लम्हों के खिलते चेहरे पर गजब का नूर देखा। बेख्याल और मस्त मौला बादलों की चाल थी, उनकी ताक पर नाचता हुआ नीला मयूर देखा। बेख्याल और मस्त मौला बादलों की चाल थी, उनकी ताक पर नाचता हुआ नीला मयूर देखा। अफ्ताब समुंदर की गोद में छिपने को जा रहा था, शाम के शाम माथे पर किरणों का सिंदूर देखा। अफ्ताब समुंदर की गोद में छिपने को जा रहा था, शाम के शाम माथे पर किरणों का सिंदूर देखा। फजाएं टहनियों से खेल रही थी पकड़ा पकड़ी, झूमते दरख्तों का मैंने अंदाज और गुरूर देखा। फजाएं टहनियों से खेल रही थी पकड़ा पकड़ी, झूमते दरख्तों का मैंने अंदाज और गुरूर देखा। मौसम की अल्हड़ सी मस्तियों में खो गई नीलम, खुद पर एतबार किया तो रूह का सूरज। मौसम की अल्हड़ सी मस्तियों में खो गई नीलम, खुद पर एतबार किया तो रूह का सूरज। My second poem, this is in English. The title is A Tearful Adieu. Mom, so secure was I in your womb. My life inside you was a real miracle. My tiny feet swam in glee. My little hands cuddled you merrily. My toothless mouth was often giggle and cackle. Mom, so happy was I in your womb. But one day, some quivering clatters I could hear. I heard someone scream and roar, I don't want daughters anymore. Sobbed as I listened to your helpless tears. Mom, how could I smile in your womb when I understood that being your daughter was so bad? My little eyes cried and heart yearned. Something in me had already failed. Alas, I realized I would soon be dead. Mom, though I shall no longer dwell in your home, your warmth and affection I shall surely miss. To you, I shall not lie. I am not expected to die, but fate had in store for me this deadly kiss. Mom, so happy I am to have been a part of your home, although the togetherness was destined as a short meal. As death counsels and approaches near, I bid you tearful adieu, Mom dear. May 100 sons be born to you soon. May 100 sons be born to you soon. And now for a story. I will be reading from my book Skylines. The story is titled The Hatters. This is regarding racial attacks in Australia which were taking place around 2 years back. As Edward Becker read into goal the last ball of the innings, different thoughts raced in his mind. It was his first international match. His captain had reposed complete faith upon him, and he had been assigned the critical task of bowling the last over in the critical match. He was feeling a bit insecure and unsteady. Would he be able to deliver? What if he failed? It was a do or die situation. Just then, Ria's face flashed in his mind. She was bubbling with joy and chirpy as ever. Her face beamed as she said, Edward, I know it. You have it in you, and you can do it.
closed his eyes for a split second. He suddenly felt an inrush of energy. Yes, he could do it. Had he already not taken 5 wickets? He spun the ball with renewed enthusiasm and vigor. This ball could either make or break the game. The rival team was just 3 runs short of victory. The ball went briskly to the batsman and he had no chance. The ball touched the edge of his bed and landed in the hands of Edward once again. He jumped, he danced, he shrieked. He was extremely overjoyed. The captain and all his other teammates hugged him and threw him in the air. He felt he was at the top. Edward was getting married to Dia in the evening and he wanted to share this moment with his sweetheart. While the champagne bottle was opened for him by his teammates, Edward was once again taken down the memory lane. He had pursued English literature earlier, not because it interested him, but since he could not think of anything better to do. Similarly, he had applied for this post of assistant editor in the famous social magazine Buzz because he could not think of anything better. He did not have any craving to work as an editor. He had reached the venue of the interview without any expectations or goal. After all, one had to do something in life. When he reached the venue, he was informed that the interview has been postponed by 2 hours. He was sitting lazily when an exquisite perfume filled his nostrils. A beautiful girl had entered and sat next to him. All eyes were on her. She looked stunning in a red tunic top and denim. But what bewitched him the most were her eyes. He felt electric sparks flying. To start the conversation, he asked her her name. With a glimmer in her eyes, she replied, Dia. Your name sounds interesting. What does it mean? Was it an Indian name? He asked. He had heard the name Dia for the first time and it sounded not only different but also intriguing. She scrutinized his tall and narrow body frame before replying. Dia means a candle in Hindi, a candle which lightens the world while burning itself. Too philosophical for me, he said. When Dia was summoned, he watched her tall figure merrily going inside with a confident gait and come out satisfied. When his turn came, he went inside quite leisurely. The lady conducting the interview asked him, and why do you think you deserve the job, Edward? Madam, after coming here for the interview, I am sure that I don't deserve the job at all. I may have a lot of degrees, but I lack the passion which is necessary for this job. I think Miss Dia deserves this job, he replied after a small gap. The lady smiled and said, so did we. Then after a pause, she asked him, and what do you think is your passion, Edward? My passion is cricket, and I am going to pursue that. Edward could hear the word being uttered, but he was not sure if he was really uttering them. There was an initial selection for the cricket team of West Class the next day. He really enjoyed playing cricket, but never thought of it as a career. Now he knew it was his heart's duty, and he had to follow his heart. He suddenly made up his mind to attend the selections. He wondered if he could really make it to the final Australian cricket team someday, which he had often dreamt as a child. Since then, Edward's rise in cricket had been phenomenal. He had become everybody's envy as a spin bowler. When he got selected for the Australian Cricket League 4 years later, he was ecstatic. He knew he owed it all to Dia for her continuous encouragement, with whom he had a steady relationship since the time they first met. Of course, he could have been an assistant editor, a field for which he was not suited. He decided to propose to Dia as he went to her with the news of the selection. After all, he had known Dia for 4 long years. Since the first match of the one-day series was being played, Dia had suggested that they keep their marriage low profile. It was decided that they would get married in the church in a simple ceremony and then announce their marriage after the one-day series. She did not want Edward's attention to be diverted by anything other than cricket at that point of time. Edward knew the style of the party was finally over. He wanted to reach the church immediately. He wanted to see Dia in a red sari. He wanted to feel her in her arms. He wanted to hug her, kiss her, and tell her how much he loved her. He knew that Dia must have been waiting for her with equal anxiety. However,
Edward was astounded when he found no trace of Dia at the church. He tried to call her on a mobile, but it was switched off. He had sent her at least 20 messages since the time match was over. When he did not find her, realization dawned upon him that Dia had not replied to any of the messages. He called up her brother Devesh, who was equally stunned. He informed him that she had left almost 2 hours ago. While he was wondering what he should do next, finally there was a call from Dia's number. He was overjoyed. Even before she could speak, he yelled, "Dia, what is this? Where the hell are you? I've been searching for you all over like mad," and somebody silenced him on the phone before he could complete the sentence. He heard an authoritative voice saying, "Inspector Thomas here. The girl Dia has been badly hurt and we have got her admitted to the Concord Hospital. We saw your messages on her mobile and decided to call you. Can you come down immediately?" Edward was numb with shock. For a moment he felt helpless. However, recovering from the jolt, he informed Devesh and both of them rushed to the hospital. Edward looked at Dia in disbelief as he peeked through the glass packaging. She lay unconscious in a sari, the same red sari which Edward had requested her to wear. But her body was also red with blood all over. The doctors were trying to revive her. He wanted to go and hold her in his arms, but sadly, no one was allowed inside. The inspector, who had been available right from the time he had brought her to the hospital, patted his back as he said, "Congrats for winning the match, Edward. I believe you love the girl. She was attacked by some fellows. But we are still trying to map the culprits and ascertain the cause. It is being said it was a racial attack. Please have patience and help us catch the culprits. I know it hurts, but we are trying our best." Edward could hear no further. He sat down on the floor and started sobbing loudly. The racial attacks. The damn racial attacks. Why had he asked her to wear the damn sari? Maybe, if he had not asked her to wear it, things would be different. He glanced at Dia once again. So innocent she looked. What did those bastards get by attacking her? Somebody came and patted his shoulder. It was the doctor. He informed him, "Edward, Dia is alive, but she is in a coma. The future of such patients cannot be predicted. I would have liked to help you, but I have limitations. After all, I am not God, I am a doctor. In such cases, sometimes the patient comes back to life almost instantaneously, and sometimes it takes days and months." Edward interrupted him. "And sometimes the patient never comes back to life, isn't it?" The doctor lowered his head as he said, "Yes, in some cases the patient never normalizes. He can only pay." Edward shouted, "Dia, please come out of your passion and zest to live life. I need you, Dia. I need you. I can't live without you. You are my passion for life, Dia. You are my passion." He rested his head against the wall and cried for hours. One day, Edward entered his apartment and he saw Dia's face mocking at him from the life-size poster in his living room. Her naughty gaze was asking him, "Won't you kiss me, darling? I want to savor your lips." He rested against the poster and wept inconsolably once again, just as he had been doing for days. Suddenly there was a tap on his shoulder. He looked back to find it was Devesh. He embraced Devesh and sobbed, "Please get me back, my Dia. Please get her back. Call her. Can't you?" Devesh did his best to pacify him, which was difficult. After he had calmed down a little, Devesh asked, "Edward, I hope you are going to play your match tomorrow. It is an important match for you because the selections for the World Cup will be held based on the match." Edward screamed, "Devesh, how the hell can you think of the match? Are you really Dia's brother? What the hell has happened to you? Our Dia is lying in hospital, lifeless. Have you forgotten this?" Devesh replied, "No, I have not forgotten it and can never forget it. But do you remember why you loved Dia in the first place? For a zeal and passion for life, isn't it? Think from her point of view. Will she be happy to find out that you have left playing? Will she be happy to find out that you were not selected for the World Cup squad?" Edward was stunned by what Devesh had said. As he sat on the sofa, Dia flashed in his mind once again. He loved her.
He had never thought of a nationality or a religion or his own nationality or religion while falling in love. Love is so pure, selfless and noble. It encompasses all boundaries of race, nation, religion and creed. But hatred is selfish and self-centered. Why can't people simply love other people? Today it was as Dia who was attacked. Tomorrow it could be anyone else. Some Emmy, some Zina, or some Manisha. We will have to go through all this in some other part of the world. Why? By morning he had taken a firm decision. He was going to kill. Not for himself, but for his Dia and for all the Emmys and Zinas and Manishas. He was going to play and tell the world through the paparazzi to love human beings as human beings. Dia had told him once that Dia means a candle which lightens the world while it itself burns. True to her name, till Dia burned, the world would at least give a thought before committing such acts of hatred. In the morning, he was quite calm as he leaves Dia's room in the hospital. He whispered in her ears, Dia, you know I've learned something more in life. Now we were both working for a passion, but now passion is playing for love. Love for you and love for mankind. And I no longer feel perturbed or insecure. I know I am going to help my teen friend today. When we get married, I'll have much more to tell you. For a moment, Edward felt that Dia smiled. However, when he touched her again, there were no signs of life. But he was sure that Dia would come back to life one day, and he was ready to wait for her till eternity. Thank you. And now I invite Dr. Mohan to tell you. He is a well-known Hindi writer. He did his PhD in economics and belongs to the Indian Economic Service. He started his career as lecturer in economics and taught at Guru Tegh Bahadur Khalsa College and later at Dr. Zakir Hussain College, Delhi, and also served on various important positions in the different departments of government of India. He has a poetry collection to his credit and many of poems have been published in literary magazines and journals. He did poetry recitation from many reputed platforms like the Punjabi Academy Delhi, the Poetry Society of India, etc. I welcome Dr. Mohan. धन्यवाद। नीलम जी की बुलंद आवाज के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी थोड़ा वायरस से उठा हूँ। So the fact that I've been able to make it here today, so itself is a great strength to me, and given the good response from the audience, I'm sure you will enjoy my Hindi poetry today also. Thank you. मेरी सबसे पहली कविता है जो मैंने अभी रिसेंटली में लिखी है। अभी हम लोग कुमाऊं में गए थे तो पर्वतों को देख के थोड़ा प्रेरित होकर मैंने पहचान के शीर्षक से इसको लिखा। मैंने पूछा पर्वतों से, क्यों करते हो दृष्टि बाधित? मैंने पूछा पर्वतों से, क्यों करते हो दृष्टि बाधित? सदियों से खड़े दम्भ को क्यों करते हो परिभाषित? हवा भी शोर मचाती, अंततः चुप हो जाती। बदरा कभी पानी कभी बर्फ गिराते, जलधारा बन अपना रास्ता खोजते। तुम तो दुर्गम पत्थर बन वहीं रह जाते। पर्वत बोला, ठोस हूँ, पत्थर हूँ, बाधा हूँ, क्या यही रूप देखा तुमने मेरा? भीतर से तरल हूँ, नरम हूँ, यह तुम समझ पाओ, इसलिए करता दृष्टि बाधित।
पर्वत फिर बोला, प्यारे पथिक, मेरे अंचल में मेरी जलवायु से बनो स्वस्थ व बलवान। कितने जीवन शिखर है तुमने चढ़ने, इसका है मुझे संज्ञा। और फिर मेरे एकांत के आगोश में बैठ, मेरी गरिमा को पियो तुम सांस सांस। निरंतर आघात सहकर भी सज्ज रहना सदैव। क्या यह मेरा दम या मेरी पहचान? अवाक मैं वह परिदृश्य निहारता ही रहा, सूर्य को एक पर्वत से चढ़ते और दूसरे से उतरते हुए, हवा, बादल और पानी को भी दिशा ढूंढते हुए। अटल पर्वत अपनी पहचान दिखाता रहा, मैं मुग्ध होकर सोखता रहा। नहीं और भी पढ़ रहा हूँ। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा विज्ञान करने दीजिए। थैंक यू। अभी एक रोमानी और एक दूसरे टच में भी नीलम जी ने अपनी कहानी पढ़ी। तो जब दो प्रेमी जुदा हो जाते हैं तो क्या समा बनता है, मैंने उसको एक गजल में पेश करने की कोशिश की है। ये अभी मैंने ऑल इंडिया रेडियो के रिकॉर्डिंग कर दी, अभी ये पढ़ी थी 15 दिन वापसी में मिलता। रूठने से उनके उदास ये आसमां हो गया, रूठने से उनके उदास ये आसमां हो गया। गर्दिश में बेवफा चांद ना जाने कहाँ खो गया। अल्लाह शेर हाजिर है। कितनी हसरतों से बुने थे हमने ख्वाब, कितनी हसरतों से बुने थे हमने ख्वाब। दफतन फासला एक दरमिया हो गया, रूठने से उनके उदास ये आसमां हो गया। गर्दिश में बेवफा चांद ना जाने कहाँ खो गया। रूठने का हक फकत उन्हें ही मिला, रूठने का हक फकत उन्हें ही मिला। हंसता हुआ दिल अपना यूं बेजुबान हो गया, रूठने से उनके आसमां उदास ये आसमां हो गया। गर्दिश में बेवफा चांद ना जाने कहाँ खो गया। अगला शेर अर्ज़ है। प्यार में हमने संभाल रखे राज दिल के थे, प्यार में हमने संभाल रखे राज दिल के थे। शोलों के हवाले यूं इश्क का जहां हो गया, रूठने से उनके उदास ये आसमां हो गया। गर्दिश में बेवफा चांद ना जाने कहां हो गया। तभी से दिल को याद सिर्फ उन्हीं की ही आती है, तभी से दिल को याद सिर्फ उन्हीं की ही आती है। गोया यह किस्सा हर तरफ यूं बयां हो गया, रूठने से उनके उदास ये आसमां हो गया। गर्दिश में बेवफा चांद ना जाने कहां हो गया। मैं अपनी अगली 2-3 कविताएं अपने संग्रह, जो मेरा पहला संग्रह छपा था, मात्र निगत करके इसका नाम है। तो टाइटल कविता भी मैं करूंगा। उससे पहले है मेरा कॉल, एक छोटी सी कविता है। ये जनमानस की आम व्यथा की बात है, उसको मैंने प्रदर्शित करने के लिए कहा। मेरा कॉल। मन करता है कि विश्वास करूं, अपने पर भी और औरों पर भी। मन करता है कि विश्वास करूं, अपने पर भी और औरों पर भी। पर इस जमाने की हाय तौबा में, पर इस जमाने की हाय तौबा में मेरा डगमगा गया है मेरा कॉल। पर इस जमाने की हाय तौबा में
डगमगा गया है मेरा कॉल तेरी मेरी की तंग गलियों में, तेरी मेरी की तंग गलियों में खो गई है मेरी फितरत। माफ करना है भगवान, माफ करना है भगवान, मैं तुझसा विशाल और दयावान ना बन सका। अब मेरी शीर्षक कविता मात्र निमित्त। मानव सागर की लहरें इधर उधर चारों ओर, मानव सागर की लहरें इधर उधर चारों ओर, जहां भी घूमे नजरें अनंत प्रतीत होते इनके छोर। बूंद अकेली कितनी भोली, सागर बनी संग हम जोली। बूंद अकेली कितनी भोली, सागर बनी संग हम जोली। भ्रम टूटा और नैया डोली, उद्वेलित हो जब वह बोली। बूंद अकेली कितनी भोली, सागर बनी संग हम जोली। भ्रम टूटा और नैया डोली, उद्वेलित हो जब वह बोली। संसार सागर के उफान, बराबरी के आधार, मिटना बनना, प्रकृति का चरम सीमा को पार करना। बना बनाया मिटना फिर बनना, विधाता के निराले विचित्र खेल। क्या हम मात्र निमित्त? ज्ञान की उष्णता पाकर मुक्त कण जब आसमान विचरते, दूर प्रदेशों में जाकर वे उद्धार प्यासों का करते। और अंतिम कविता मैं पेश कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है खोज। तन्हा गहराइयों में डूबकर शून्यता का एहसास हुआ था मुझे। डर सा लगने लगा था कि क्या कुछ ना होना या सब कुछ खो देना ही जिंदगी की असलियत है, जो छुपी हुई थी मुझसे आज तक। मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, इन सब प्रश्नों के उत्तरों की तलाश जारी है अभी तक, जो शायद चलती रहेगी उम्र भर, भीतर बाहर। ढूंढता ही रहा हूं स्वयं को, घर में, समाज में, अपनों में, परायों में। इस ना खत्म होने वाली खोज में एक सबक मिलता हुआ प्रतीत होता है मुझको। यह खोज सिर्फ मेरी ही नहीं है, यह खोज मुझे लगता है सबकी है, हम सबकी है, अपितु हर एक की है। परिस्थितियां भिन्न हैं हर एक की, पर हर शहर में हम सब में आपस में इतनी विविधता होते हुए भी कितनी समानता है, कितना एक है हम सबका गंतव्य। अपनी इस खोज के निचोड़ से ना जाने क्यों एक अजीब सी शांति का अनुभव सा होने लग पड़ा है। हम सब की यात्रा भिन्न होते हुए भी मिलाती है हमें एक बिंदु पर हम सबको। कितनी अजीब बात है कि इस एहसास के रहते अब मुझे कोई अजनबी नहीं लगता। देखना है कि यह चरम का एहसास कितना क्षण भंगुर है, या फिर टिकता है देर तक भीतर बाहर। धन्यवाद। Everybody is enjoying and
very interesting audience, and I guess Mr. Ravish Murli is here, Secretary, Ministry of External Affairs, also, writers and poets, and I'm sure everybody is having a very nice experience, listening to so many different types of stories. There are some stories I think now. And I now invite Ms. Geeta Shri. She is a well-known Hindi writer and journalist. She has 10 published books to her credit on different subjects. She was in the field of journalism, and after working with various media houses, she edited India magazine and also served as editor online for Live India channel. She is the recipient of 5 national level media fellowships, and under the fellowship researched on different social and cultural subjects. She is the recipient of the Ramnath Goenka Award for Best Hindi Journalist of the Year Award, Best several other journalism awards, Sri Janagatha International Samman and Bhartendu Harishchandra Minister. I welcome Geeta Shri, and I am sure many interesting points will come out from her experiences as a journalist. दोस्तों, मैं कहानी सुनाऊंगी आपको। हमारे ग्रामीण अंचल की कहानी है। थोड़ा सा बताना जरूरी है कि कहानी का शीर्षक कोनहारा घाट है। कोनहारा घाट बहुत लोग नहीं जानते होंगे, घाट जानते होंगे। कोनहारा ये मिथक है कि गंगा किनारे, गंगा गंडक जहाँ मिलती है, उस घाट का नाम है कोनहारा घाट, जहाँ गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी और उसमें हाथी जीता। विष्णु भगवान खुद आके उन्होंने चक्र से, ऐसा मिथ है उस इलाके में कि उसने पुकारा नारायण को, तो आके उन्होंने उसकी जान बचाई। एक मिथ है, लेकिन उस घाट का महत्व वैशाली जिले के बज्जिकांचल के लोगों के लिए इसलिए ज्यादा है कि उस घाट को 2 तरह से देखते हैं वहाँ के लोग। एक तो वहाँ के लोगों के लिए अंतिम मंजिल है कोनहारा घाट, मुक्ति वहीं मिलती है और सब वहीं जाते हैं उस इलाके के। बहुत पवित्र उनके लिए बनारस का मणिकर्णिका है। दूसरा कि कोई भी विधि विधान कुछ भी बिना कोनहारा घाट के नहीं होता। गंगा स्नान का मतलब कोनहारा घाट, तो बज्जिकांचल के लिए कोनहारा घाट का बहुत बहुत महत्व है। इसलिए इस कहानी में का शीर्षक कोनहारा घाट है और ये कहानी उसी के इर्द गिर्द चलती है। एक रूपक की तरह इसमें इस्तेमाल है। बाकी मैं आपको, कहानी थोड़ी लंबी है, मेरे साथ बने रहिएगा, बोर नहीं करूंगी, इतना वादा है। और बाकी कहानी आपके सामने। बज्जिकांचल के कुछ शब्द हैं लेकिन समझ में आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि उसको बिहारी हिंदी कर दूं, लेकिन एक आध शब्द है जिसे पात्र बोलते हैं, तो इसलिए ओह मायके मर गेरी, देवता घर में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। आवाज नहीं, एकल कराह थी जो हौले से बाहर आ रही थी। जनेऊ के माहौल में इस वक्त कौन कराह रहा होगा? नंगी सी लड्डू सोचती हुई देवता घर में प्रवेश कर गई। चटाई पर एक दुबली पतली काया सफेद साड़ी पहने हुए लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी। सिरहाने पीतल का चमकीला लोटा उलट कर रखा था। करवटें बदलती हुई वह काया अपना सिर उस चौड़ी पेंदे वाले लोटे पर रख देती, मानो वह तकिया हो। बगल में सूती कपड़े का बदरंग झोला रखा था। लड्डू झट से पहचान गई। ओह, ये तो बुढ़िया कुआं है। अक्सर वे बदरंग झोले को लेकर कहीं भी नमूदार हो जाती है, मानो उस झोले में उनकी जान धरी हो। झोले के बारे में कहते सुना है, हमारा झोड़ा कोई छूना मत, यह हमारा झोड़ा ना है, हमारा सपना है। हम इस झोड़े के सहारे कहीं भी डेरा बना सकते हैं। हाँ, सब रख लो, तुम लोग सब रख लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको इस झोड़े के साथ यहाँ से निकल जाए। अंतिम वाक्य कहते कहते कुआ लगभग गिड़गिड़ाने लगती। सब अनसुनी करके चले जाते। वे जहां होती वहीं जमीन पर पसर कर बैठ जाती, जैसे अभी तुरंत समाधि में चली जाएंगी। माँ बताती थी कि कुआ को पर्स का बड़ा शौक था। रंग बिरंगे पर्स को वे बड़े सिहा कर देखती थी, किसी के कंधे पर टंगा हो। माँ के पर्स को बहुत छूती थी। कहाँ से लिया, कितने में लिया, सवालों की बौछार। माँ कहती, आपको चाहिए तो ले लीजिए ना, दे दीजिए, हम दूसरा खरीद लेंगे। अरे नहीं तो ये क्या बात करती हो, हमारा पर्स के की काम, झोला काफी है, सब चीज इसमें अट जाता है ना। एक ठो साड़ी पहन लेते हैं, दूसरा झोले में अकोर बकोर सब ठूस दो, पर्स में कहाँ इतना जगह होता है। तो तुम लोग का ये ठीक लगता है, हम ऐसे ही पूछ रहे थे। लड्डू अपने ख्यालों में डूबी दरवाजे पर खड़ी ही थी कि फिर कराहने की आवाज आई।
चटाई पर छटपटा रही थी। क्या हुआ बुआ जी, तबीयत खराब है क्या? माँ को बुला दूं? कुछ चाहिए आपको? वो काया थमी। नहीं बाबू, मत बुलाओ किसी को, माथा बहुत बथ रहा है। ठंडा तेल घर में कहीं से खोज के ला दो, हम लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। लड्डू दौड़ती हुई माँ के कमरे में गई। ठंडा तेल ताक पर धरा था। शाम को औरतें नचारी गाने आती हैं, उनको माँ शाम को तेल और सिंदूर लगाती है। 3 दिन से देख रही है लड्डू। आंगन में चटाई पर बैठकर गोलबंद औरतें पहले शिव जी के गाने गाती, फिर कुछ मस्ती वाले गाने होते। माँ सब औरतों को माथे में तेल चुबड़ देती और फिर नाक तक लाल सिंदूर। खुशी खुशी औरतें आंचल हटाकर माथा आगे कर देती। ये सब लगाते हुए औरतों का श्रद्धा भाव देखने लायक होता। लड्डू को अजीब लगता था कि माँ सबको लगाती है, बुढ़िया बुआ वहीं पास में बैठी होती है, उन्हें नहीं लगाती। कई बार सोचा कि पूछे, फिर भीड़ देखकर समझ आती। गोरी चिट्ठी हुआ वैसे ही निर्लिप्त भाव से सब कुछ देखती, और जब औरतें चुप हो जाती तो वे अचानक से गाने लगती। उनके गाते ही बेसुरी आवाजें ठिठक जाती। अकेली तान लेती वे, बाकी लोगों के होश गुदगुदाते भरते। वे गाती, शिव जी के लाली लाली अभिया कटारी मारेगा। जब ये गाती तो उनके चेहरे पर लालित्य का जो भाव होता, लगता रूठे हुए शिव को भी वो अपने अभिनय से मना लेते। सब मुग्ध भाव से देखते, वे खुद मुग्ध भाव से आकाश की तरफ देखती। वह जब भी गीत गाती, उनकी भंगिमा बाकी औरतों से अलग होती। गांव की औरतें या तो मुंह पर हाथ रखकर गाती, या माइक लेकर, या आंचल से आधा मुंह ढक लेती। हुआ तो गीत के साथ ही गर्दन अपने आप ऊपर की हो, मानो हवा में कोई लिपि पढ़ रही हो या कोई धुन सुन रही हो। जब तक गाती, गर्दन ऊपर ही रहती। मिर्गा के छाला कहाँ पाए हो शिव मानत नहीं। गाते गाते विभोर इतनी कि सामने शिव होते तो वे गिड़गिड़ाकर मना ही लेती। रोज शाम की नचारी में यह गाना अनिवार्य हिस्सा बन गया था। आज हुआ उन औरतों के गोल में नहीं बैठी है और देवता घर में बड़ी बड़ी कड़ा रही है। तेल लेकर शीघ्रता से लड्डू लौटी। आंगन में थोड़ी देर में गीत शुरू होगा और कुआ की खोज होगी। जल्दी से तेल मल देती, शायद कुआ ठीक हो जाए। आहट सुनकर कुआ ने हाथ बढ़ाए, वे तेल लेना चाह रही थी। लड्डू ने उन्हें शीशी नहीं पकड़ाई, उनके सिरहाने बैठ गई। लोटे पर से उनका सिर लुढ़कने ही वाला था कि लड्डू ने अपनी गोद में उनका सिर रख लिया। वे कुनमुनाई, कुछ कह रही थी। लड्डू ने चुरुआ भर तेल लिया और कुआ के माथे के बीचों बीच वैसे ही छोप दिया जैसे माँ माथा दुखने पर बाबूजी को लगाती थी। खूब सारा महका हुआ तेल और लड्डू की छप 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 छप। कुआ को आराम आने लगा था। लड्डू ने पहली बार गौर से देखा बुआ का सिर काले घने बालों के बीच में कहीं कहीं सफेदी बादलों से झांक रही थी। बीच में खाली मांग पट्टी जहाँ तेल की हल्की धार बह रही थी। नन्हे हाथों से उस धार को समेटती हुई लड्डू बार बार उस मांग पट्टी को देख रही थी। उसे वहां का सुंदरपन खल रहा था। क्या कभी कुआ सिंदूर लगाती होंगी? कैसे दिखती होंगी? सुंदर दिखती होंगी ना? कितनी सुंदर है, गोरी गोरी मेल जैसी। लड्डू के भीतर तीव्र इच्छा जागी। कुआ को बाकी औरतों की तरह सजे धजे देख रही थी। मन मन में कुआ की बाहों में सिंदूर लगा देख रही थी। माथे पर टिकुली और नाक तक सिंदूर वाली कुआ कितनी शोभ रही थी। कुआ माथे में हल्के मसाज से सो गई। एक आध बार गुदगुदाई, छोड़ दो बाबू, जाओ खेलो, बहुत हो गया, तुम बहुत कर दी। बड़ा तो कोई आजकल करता ही नहीं, तुम बच्चा होकर इतना कर दी। लड्डू ने उन्हें सुना ही नहीं। वो अपनी धुन में थी। वो बुढ़िया बुआ को रंगीन कपड़े में सिंदूर लगाए पूरे घर में चहकते फहकते देख रही थी। बड़की चाची जैसे चमकती रहती है घर भर में, वे सबसे मजाक कर लेती है और सब उनसे बड़ी रौनक लगाए रहती। बस बुआ की उपस्थिति में शांत रहती। वजह नहीं पता, पर अक्सर बुआ के सामने वे सख्त मालूम पड़ती थी। बुआ भी उनके सामने बंजारों की तरह बैठी रहती, जैसे उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं रह गया। वो विदे हो जाती उस वक्त। लड्डू को अचानक गुस्सा आया। उसे पता नहीं होता था कि बुआ कहाँ रहती है। जब गांव में कोई जंग त्योहार हो तो सब जुड़ते थे। उसी वक्त बुआ भी दिखती थी। जितने दिन रहती लड्डू उनके साथ चिपके रहना चाहती थी, पर वे जैसे मोह माया से मुक्ति के भाव में सबको देखती रहती। मशीनी अंदाज रहता जैसे। हंसी ठट्ठा के दौरान उन्हें शांत चित बैठी रहती। लड्डू को कोर्स में पढ़ी ताजा कहानी फूल कुमारी की याद पड़ती, जो न कभी हंसती थी न रोती थी। उसे हंसाने की बहुत कोशिशें होती, पर वो न हंसती थी। और एक दिन एक राजकुमार वेश बदल कर आया और उसने अपनी अजीबोगरीब हरकतों से फूल कुमारी को हंसा दिया। कहानी के साथ फूल कुमारी का चित्र याद आया उसे। बेहद गंभीर निर्विकार चेहरा, जो हंसी के इंतजार में हो कि कोई आए और लाए ढेर सारे फूलों से हंसी। बुआ का चेहरा कई बार उसी चित्र वाली फूल कुमारी की तरह दिखता। बुआ को किसी और भाव में नहीं देखा था उसने, पर उनसे गजब लगाव महसूस करती थी। लड्डू के मन में फूल उठा। बुआ का सिर हौले से नीचे धरकर उठी।
कुल देवता के सामने पूजा की सारी सामग्री रखी थी। तांबे की कटोरी में लाल टूटू सिंदूर रखा था। अपनी नन्ही नन्ही अंगुली में सिंदूर डुबोकर माथे पे फुआ के उसने पतली सी मांग जहाँ दिख रही थी सिंदूर लगा दिया। कैसे लगेगी फुआ का चेहरा, कैसा लगेगा फुआ का चेहरा, एक बार देखना तो चाहिए ना। सारी औरतें रोज नाक तक सिंदूर लगाकर ठिठोली करती हैं। फुआ की कोड़ी मांग उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। आज वैसे ही रंग देगी जैसे घर में किसी कोरे कागज को रंग देती है। दिन भर घर में सादा पेपर तलाशती रहती है, ना मिले तो दीवारें हैं जिस पर रंगीन स्केच से आड़ी तिरछी लाइनें खींचा करती है। फुआ की मांग भी कोरी दिख रही है, वो लाल रंग मांग रही है, वो भर देगी कोरेपन को। किसी को क्या पता चलेगा फुआ बेखबर सो रही है। दर्द से राहत के बाद उनका चेहरा कितना शांत स्निग्ध लग रहा था। सबसे सुंदर है फुआ, उन्हें सजने का मन क्यों नहीं होता, क्यों वे अलग थलग रहती है। माँ तो बिना सिंदूर लगाए खाना नहीं खाती। उनका रोज का नियम है, पतली लंबी सी कोई लकड़ी नुकीली चीज है जिससे सिंदूर लगाती है माँ। हाथ में लेकर कई बार उलट पुलट कर देखा। माँ ने झटक लिया, छूना मत, चुप जाएगा, साई का कांटा है। बेटा देखा नहीं ना कभी, एक जानवर होता है, उसकी देह पर बड़े बड़े कांटे होते हैं, वही कांटा है, सिंदूर लगाने के काम आता है, तेरे खेलने की चीज नहीं। कांटों भरा जानवर, बाल मन कौतूहल से भर उठा। ये कांटा फुआ के झोले में होगा या नहीं? नन्ही आंखों में सवालों की बुलबुलें तैरने लगी। उसे लगा फुआ की देह में असंख्य कांटे उगाए हैं, शायद इसीलिए सब उनसे दूर रहते हैं। फुआ की पतली देह रेंगने लगी थी जमीन पर, कांटों से लदी देह। वह जंगल की तरफ जा रही थी। असंख्य आवाजें उन्हें बुला रही थी। किसी आवाज को लड्डू नहीं पहचान पा रही थी। उसने पलट कर सोती हुई फुआ को देखा। अभी वह बेखबर सो रही थी। नहीं, फुआ की देह में कांटे तो नहीं हुए थे। उसने सुकून की सांस ली। फुआ के साथ सब कुछ ठीक तो है, फिर क्यों वो श्रृंगार नहीं करते? वह एक दिन पता करके रहेगी, फुआ क्यों सिंदूर और कांटे से दूर रहती है। फुआ को क्या हुआ है? नन्ही उंगलियां आगे बढ़ी, उसने सिंदूर की पतली लकीर मांग से लेकर नाक तक खींच दी। दृश्य बदलता है। शादी के तुरंत बाद सोनपुर मेले में फूफा जी की ड्यूटी लगी थी। सोनपुर थाने का दरोगा कोई मामूली हाकिम नहीं होता था। फुआ को अपने साथ ले चले थे फूफा जी। उस जमाने में चौधरियों के यहाँ जीप हुआ करती थी, जिससे वे पूरे इलाके में रॉक गाड़ सकते थे। वे भूस्वामी थे, पर घर के सारे पुरुष नौकरी करने को उतावले थे कि इससे पढ़े लिखे होने का प्रमाण समझा जाता था। फूफा जी नौकरी पा चुके थे और उनके 2 और भाई नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहे थे। जीप फूफा जी के पास रहा करती थी। अपने साथ में अल्सेशियन कुत्ता लेकर चला करते थे, जो गांव आने पर फुआ के साथ खूब खेला करता। आंगन का खिलौना था टाइगर। उतना खूंखा कुत्ता फुआ के आंचल की छोर पकड़कर खींचा करता था और वे खिलखिलाकर उछला करती। जिस दिन फूफा जी लौटते उस दिन फुआ उदास होती टाइगर के लिए। टाइगर लपक कर जीप में चढ़ जाता। दूर तक दरवाजे की ओर से फुआ टाइगर को देखती। फूफा जी खुद ड्राइव करते, सो वे पलट कर नहीं देखते कि टाइगर पीछे ही देख रहा है। पहली बार फूफा के साथ फुआ सोनपुर मेला आई थी। इसके पहले मेला के बारे में सिर्फ सुना भर था, देखा नहीं था। दादाजी को मेला ठेला का कोई शौक नहीं था, सो घर के लोग खूंटे से बंधे जीवन जिया करते थे। मर्द लोग कामकाज के लिए बाहर जाते, शहर जाते। पर्यटन की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी। औरतों के लिए 2 आंगन वाली हवेली ही काफी थी। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क सिर्फ चूड़ीहार या चूड़ीहारी ही जोड़ा करते थे, जो समय समय पर बताते थे कि शहर में किस तरह की चूड़ियों का फैशन जोर मार रहा है, या किस फिल्म में नंदा या वैजंती माला ने कौन सी चूड़ियां पहनी, किस गाने में कौन सी चूड़ी पहनी गई। पान चबाती हुई सरस्वती चूड़ीहारी देर तक वहाँ हंसी ठिठोली करती रहती। फुआ अपने बचपन में यह सब देख रही थी और वे बाहर निकलना चाहती थी। वे बाहर निकली पर ब्याह करके। स्कूल की सारी पढ़ाई घर पर हुई। लड़कियों के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी समझने वाले दादाजी ने घर की सारी औरतों को हस्ताक्षर करने लायक पढ़ाई करवा दी थी। फुआ ने थोड़ा ज्यादा किताबें पढ़ ली। उन किताबों ने उन्हें इसका फल दिया और वे पढ़े लिखे चौधरी से ब्याही। सोनपुर मेला न हुआ, भोपाल हो गया। फूफा जी ड्यूटी पर और फुआ डगर डगर। दिन भर में घूमती। आते समय माँ ने मुट्ठी भर पैसे दिए थे, कुछ फूफा जी ने भी थमा दिए। टाइगर फूफा जी के साथ मेला में घूमता रहता और फुआ अपने टेंट के आगे खड़ी होकर किसी की तलाश करती जिसके साथ मेला का चक्कर लगा सके। 2 दिन तक खड़े खड़े कोई परिचित न मिला। मेले का शोर उन्हें खींच रहा था। जाने की सर्द सुबह में फुआ कश्मीरी शॉल लपेटे टेंट के बाहर खड़ी थी। नजरें इधर उधर फिरा रही थी। खोज की बेचैनी पैरों को कहीं भी खींच ले जाती है। 14 साल की दुल्हन चली जा रही थी। उसे ये भी होश नहीं कि वापस अपना ठिकाना खोज भी पाएगी या नहीं।
बस कुछ खींच रहा था उन्हें। एक आवाज थी, दूर किसी लाउड स्पीकर से आ रही थी, कोई गा रहा था ओज पुन गान जैसा कुछ और बीच बीच में उठो जागो जैसी बातें। आवाज में कशिश थी, वो कब उस शामियाने में घुसती चली गई नहीं पता। वहाँ लोग गायकों की मंडली बैठी हुई थी, ओज में जोर जोर से गा रही थी। गायन मंडली में से एक भी स्त्री नहीं। वह मंत्रमुग्ध सी चुपचाप एक किशोर गायक के बगल में बैठकर कब गाने लगी नहीं पता। सुंदर सुभूमि भैया भारत के दिशवा से मोर प्राण बसे हिम कोहर बटोरिया। शामियाने में लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। किशोर गायक ने खिसक कर कुआ को जगह दी, खुद झाल बजाने लगा। कुआ के चुप होते ही किशोर ने आंखों में मनोहार भरते हुए फिर गाने का इशारा किया। वो फिर गाने लगी, एक द्वार घेरे रामा हिम को तबलवा से, तीन द्वार सिंधु बहरावे रे बटोरिया। किशोर गायक और कुआ देर तक गाते रहे। अचानक कुआ को ध्यान आया कि ये रास्ता भटक कर यहाँ आ गई थी, उन्हें वापस अपने टेंट में लौट जाना है। किशोर गायक उन्हें साथ छोड़कर दूर तक चला आया। वापस होते हुए किशोर ने कुआ से पूछा, कहाँ गए? हम घर। किशोर से कुआ ने पूछा, कहाँ गए? हम घर में नहीं, बालाश्रम में रहते हैं। हम अनाथों का कोई घर नहीं होता, आना कभी। कहाँ है? वो नहारा कहा। ओ ठीक है, पहचान लोगी हमें? अगर हम बड़े होने के बाद आएंगे तो तुम पहचान लोगी? सवाल दोनों ने किया, जवाब किसी ने नहीं सुना। टाइगर भागता हुआ आया और शॉल खींचने लगा। फूफा जी तो पधार चुके थे। देवता घर के बाहर को हल्ला सुनकर कुआ के नींद टूटी। वे हड़बड़ा कर उठी और झोला लोटा समेटते हुए बाहर। कुआ उन्नीदी सी बाहर निकली, जैसे शाम को सो जाने के लिए शर्मिंदा हो। जिस घर में जब हो वहाँ कोई औरत सो कैसे सकती है? भीड़ भड़कता में एक देवता घर में सबसे अधिक शांति होती है, जहाँ दिन भर कोई नहीं आता जाता जब तक पूजा न करती हो। उन्नीदी कुआ को देखते ही जो जहाँ था वही थम गया। समय जैसे थम गया था, ठीक वैसे ही जैसे लाल बत्ती को देखकर सारी ट्रैफिक रुक जाती है। सारी औरतें और आवाजाही कर रहे मर्द सब अपनी अपनी जगह से जग गए थे। हरे रंग की पतले पार वाली मुड़ी पूरी सफेद साड़ी सिर से नीचे ढुलक आई थी। माथे पर थोपा गया तेल, हल्की हल्की लकीर बालों पर खींच आई थी। काले लंबे खुले बिखरे बाल। खटिया पर बैठी सरैया वाली चाची धड़खड़ा कर उठी और लड़खड़ा गई। मणिपुर वाली मझली चाची पूजा का सामान लिए वही ठिठक गई। लड्डू की माँ सबसे छोटी थी तो सिर पर आंचल धारे लड्डू को लिए खंबे के सहारे खड़ी अंगना में मरवा बनते देख रही थी। किसी को सूझ नहीं रहा था कि फुआ को टोके कौन। दादी तो थी नहीं। बड़की चाची के मुंह से अचानक निकला, हे बहुआ की कर लेली की भेगे लहा के अनर्थ भेल। वो हाथ उठाकर सिर की तरफ इशारा कर रही थी। मझली चाची बोली, हे बहुआ जल्दी जाओ, अंगना में जाके मांग धो लीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। सबकी हालत देखकर अब सुनकर फुआ को लगा वो कुछ अनर्थ हो गया है जो उनकी समझ से बाहर है। माथे की तरफ देखती कई जोड़ी आंखों ने उन्हें इशारा किया। दाएं हाथ से तेल चुपड़े बालों को छुआ, फिर हाथ नीचे आ गया। हे भगवान, उनके मुंह से तेज चित्कार निकली, ठीक वैसी ही जैसे फूफा जी की मरने की खबर लेकर जिस दिन टाइगर आया था। वो माह की शाम थी, ठंडी और धुंध से भरी हुई। फूफा जी गांव लौट रहे थे। शायद इस बार फूफा को शहर ले जाते और वहाँ आगे की पढ़ाई का बंदोबस्त करवाते। कुछ इसी तरह की बातें घर में होती हुई सुनाई पड़ी थी। मन ही मन फुआ तितली बन गई थी, इस आंगन से मुक्ति मिलेगी। शादी के बाद फूफा जी ने दोंगा की रश्म भी नहीं कर रही थी। बाबा से साफ कह दिया था, हम देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी शिकायत नहीं आएगी। बाबा ने सोचा था कि शादी करके 2 साल बाद दोंगा करेंगे, तब तक फुआ जवान भी हो जाएंगी। पर दरोगा फूफा ने उनकी एक न सुनी। फुआ गई सो गई। वे मायके जाने की बात करती तो फूफा जी जीप में बिठा कर ले जाते, सबसे मिलवा कर वापस, जैसे उन्हें भी कोई गुड़िया मिल गई हो जिसकी उपस्थिति उस वीरान घर को आबाद रखती थी। 3 भाइयों की माँ यही निकलौती बहन अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए। उस शाम दरवाजे पर फुआ की आंखें लगी थी। उनका प्रिय खिलौना टाइगर जो आने वाला था। जानती थी कि धूल उड़ाती जीप रुकेगी तो टाइगर दौड़ता हुआ घर में घुसेगा। फुआ इंतजार करते करते किवाड़ से उठ गई। देर हो रही थी और ठंड की शाम जल्दी अंधेरों से भर जाती है। फिर फुआ को वहां से उठकर लालटेन जलाना पड़ेगा। हवा के झोंके के साथ धूल उड़ती दिखी दूर कच्ची सड़क पर। फुआ को बड़ी भाभी का प्रिय झूमर याद आया। लावे गेले हल्दी उड़त आवे गरदी, झुलत आवे हो पातर पिया के झुलुकिया झुलत आवे हो। मधुर कंठी फुआ खुलकर गाती,
किसी लोक लाज की परवाह किए रहते हैं। नन्ही सी उम्र में अनगिनत गीत कंठस्थ, जैसे ही अंतरे पर पहुंची, जो हम जनती पिया मोरा है तई, सड़क बीचे ना हम सिजिया बिछवती, सड़क बीचे ना। टाइगर बेतहाशा भागता भौंकता हुआ दीवार से आ टकराया। हुआ ओढ़ंगी हुई थी दीवार से, वे लुढ़क गई। टाइगर उनकी साड़ी खींच रहा था, उनका मुंह लाल हो गया था, मानो किसी का खून पीकर आ रहा। हुआ चीखती चिल्लाती टाइगर पर बैठती हुई उठी। टाइगर उनकी साड़ी खींचकर घसीटने लगा। हुआ चिल्लाई। सास ससुर दलान से बाहर निकले, वे सबके पीछे पीछे। पटदारी के लोग भी बिना तो समझे पीछे भाग रहे थे। अजीब कोलाहल और नजारा सड़क पे, धूल ने सबके चेहरे धुंधले कर दिए थे। सबको टाइगर पर भयंकर क्रोध आ रहा था। कुछ तो अनहोनी घटी है जो यह मूक जानवर बता नहीं रहा था। सास परेशान थी कि घर की कन्या लथराई हुई कुत्ते के संग भागी जा रही है। बेटा साथ नहीं है, टाइगर को क्या हुआ? ससुर जी को लगा कहीं लफड़ा में फंस गया है, टाइगर को भेजा होगा, पर टाइगर उनके पास क्यों नहीं आया? सीधे दुल्हन के पास क्यों गया? सब अपनी तरह से सोचते हुए बदहवास पहुंच गए। फिर कहानी के बाद हुआ बार बार माथे पर हाथ फिराती और उनकी हथेली और लाल होती जाती। पूरी हथेली लाल रंग से रंग गई। कौन लगाया हमको सेनूर? कौन किया ऐसा मजाक? क्या बिगाड़े थे हम किसी का? हुआ बिलख कर रो रही थी। सब हतप्रभ होकर एक दूसरे को देख रहे थे। हुआ ये सवाल क्यों कर रही है? क्या हुआ है उनको? हुआ आंचल से माथा में रगड़ रगड़ कर सिंदूर छुड़ाने लगी। दूर खड़ी लड्डू पर उनकी नजर अब तक नहीं पड़ी थी। लड्डू वहां से खिसक चुकी थी। लड्डू की माँ कटोरे में पानी और गमछा लेकर उनके सामने खड़ी थी। हुआ रोए जा रही थी। मेहमानों से भरे आंगन में उपहास और दया का पात्र बन चुकी थी। उन्हें सच का पता लगाना भी होगा कि किसने किया ये सब और क्यों, किसने दुश्मनी निकाली। लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाती, अपने राम नाम में मस्त रहती है। सब अपने सुखों में खोए रहते हैं। वे खटिया पर पड़ी रातों को तारे बिना करती है, कॉपी पर राम राम लिखा करती है। एक विधवा से इतना भद्दा और अशुभन मजाक कौन कर सकता है? जिंदगी के मजाक से वे तंग हो चुकी है। एक एक कर जिसने सब कुछ खो दिया हो, जिंदगी से इंतजार कैसे न? अब इस सिंदूर को खुद ही मिटाना पड़ रहा है। उस ठंडी और स्याह शाम को किसी की ठंडी हथेली ने इतनी जोर से सिंदूर पोछा था कि उनकी चीख निकल गई थी। पूछने वाली ने लगता है कुछ बाल भी हो चुके थे। आंगन में पछाड़ खाकर रोती हुई सास और उन्हें संभालती हुई रिश्ते नाते की औरतें एक तरफ दीवार से लगी भयभीत हुआ, जिसके पास सिर्फ टाइगर खड़ा था, हाफता हुआ सा। नन्ही कन्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, जिसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी, जो कहीं भी लौटकर नहीं जा सकती थी। जाए तो जाए कहाँ? आसरा टूट गया और रही सही कसर पटीदारी की औरतों ने उसकी सास के साथ मिलकर पूरी कर दी। सबके विलाप में नन्ही कन्या के अभागी और मनहूस जैसी गालियां शामिल थी। किशोर बैकुआ माए के माए करके रो रही थी। एक औरत ने उन्हें दुरदुरा दिया, अभियो माए के कहले छा सुहाग उजड़ गेलो, तोहर मालिक चल गेलो दुनिया से, करम फूटा हुआ लिखवा के लाई हो, जीवन भर कलंक लेके जियोगी, अब किसी जगह ठौर नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन करके दिन काटो। बुआ को लग रहा था कि वो बाबा के पास लौट जाएंगी, यहाँ कोई नहीं रखेगा उन्हें, अपने साथ टाइगर को भी ले जाएंगी क्या? उन्हें टाइगर की चिंता होने लगी थी। सबकी जुबान पर उसी की चर्चा थी और इस समय वो सबका चहेता बन गया था। टाइगर ने अपनी स्वामी भक्ति निभा दी थी। जिस शाम फूफा जीप से लौट रहे थे, दुसाट टोला में तनाव बढ़ गया था, दंगल शुरू हो गया था। दोनों पक्षों में झड़प होते देख फूफा गाड़ी से उतरे। क्या हुआ रे? फूफा जोर से चिल्लाए, मालिक आप जाइए यहाँ से, हम आज लाश बिछा देंगे यहाँ। ललनवा गायब है, सवेरे से कोनो पता नहीं है। सवेरे मालकिन बुलाए थे उसको, तब से गायब है। हमारा बेटा वापस करिए, नहीं तो खेत में आग लगा देंगे, चाहे लाश बिछा देंगे। बिल्टू हरवाहा के मुंह से गुस्से में झाग निकल रहा था। बात का है रे? चौधरी टोला का दबंग डब्बू सिंह अपने लठैतों के साथ वहां लाठी भाजता हुआ खड़ा था। रमेशर के लोग भी ईंट पत्थर फरसा लेकर तने हुए थे। मालिक, बिल्टू कुछ बोलना चाह रहा था। चुप, हम बताते हैं भाई जी, बहुत अकड़ रहा था ललनवा, सुबह बुलाए थे, डांट कर भगा दिए। अब वो कहाँ गया हमें क्या पता? डूब मरा होगा किसी कुएं पोखर में, वहां न जाकर खोजो, हमसे क्या पूछते हो? बराया हमारी बराबरी करने वाला भूतनी के पूरा टोला ही फूक देंगे। अपनी औकात भूल रहे हो का? मलेश कहेंगे। डब्बू सिंह की मूंछें अड़क रही थी। उम्र हो गई थी पर रुआब में कहीं कमी नहीं। सामंत बोझ से भरे हुए एक नंबर के अकड़ू जो जीवन भर जमीन बेचकर अय्याशी करता रहा। फूफा जी जानते थे उनके बारे में। वो गांव के इसी नरक से निकलने के लिए नौकरी ज्वाइन करने चले गए थे। यही डब्बू सिंह था जो उनका मजाक उड़ाता था। सिपाही बन गए हो भैया, हम तो अपनी रखवाली में सिपाही रखते हैं।
फूफा हाथ जोड़कर कट लेते थे। वो जानते थे कि खानदानी अकड़ुओं का दुनिया में कोई इलाज नहीं। फूफा फिलहाल लड़ाई टलवाना चाहते थे। उन्होंने दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर लड़ाई टालने के लिए बातचीत से मसला सुलझाने का आग्रह किया। हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते, हमारा रास्ता रुककर काहे खड़ा हो गया? ये देखो, सलवा पूरी तैयारी से ही पूरा टोला उठा लाया है, इनको भगाओ पहले। सर सुल्तान का दिमाग इतना खराब हो गया है कि मालिकान का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। रहना है कि नहीं इस गांव में, चल फूट यहाँ से। डप्पू सिंह की बात बीच में काटते हुए रमेशरा चिल्ला उठा, मालिक आपने अपने बता दी, बिल्टुआ का बेटा कहाँ गया? हम सब चले जाएंगे यहाँ से, ना बताए तो मार होके रहेगा। मार करेगा रे, औकात है तेरी? पलटनवा दे लाठी सलवा के कपार पर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। नहीं डप्पू सिंह मत कर ये सब। रे बिल्टुआ थाना जो, वहाँ नालिश कर, पुलिस के काम पुलिस के करे दे, आपस में उझराने से क्या होगा? हमारा थाना में नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर तेरे साथ चलकर दरोगा जी को बोल देंगे, बस ये लड़ना बंद कर। फूफा लगातार मनभार कर रहे थे। दोनों तरफ 15-20 लोग थे। बिल्टुआ के साथ उनकी चीखती हुई औरतें भी थी जो बार बार बोल रही थी, अब की मर्दा मर्दी हो जाए, बहुत बर्दाश्त कर लिए जुल्म। तू बीच से हट जाओ रामपूजन सिंह, मालिक अपने बीच में न पड़ो, जाओ घरे, हम आज फैसला करके जाएं। जहिया से हमारा बेटा कलकत्ता से वापस आया है, इन लोगों को नहीं सुहा रहा है, ये खेत में ना ही काम करना चाहता है, तो उसको ये लोग बेइज्जत करते हैं। एक खेत दिए हैं, कर्जा थोड़े हम खाए हैं इनका, हम नहीं करेंगे इनके खेत में काम, रोज गाली और लाठी के मार नहीं खाएंगे हम। बिल्टुआ गला फाड़ रहा था, उसके माथा पर जैसे खून सवार था, तो किसी की सुनने वाला नहीं था। फूफा को लगा कि उनकी सुलह की कोशिशें बेकार हो रही हैं। दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये ने माहौल को खूनी होने का संकेत दे दिया था। फूफा अब वहां से निकल जाना चाहते थे। टाइगर उन्हें खींचने लगा था। वे मुड़े ही थे कि दूर से कोई चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ो रे ललनवा, पोखरी किनारे उल्टा पड़ा हुआ है रे, जल्दी चलो रे। बिल्टुआ का माथा सनक गया, फरसा उठाया और डब्बू सिंह की तरफ उछाल दिया। डब्बू सिंह जीप से उछलकर फूफा से जा टकराए और फरसा फूफा की छाती में घिस गया। लाठियां बरस उठी और दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। फूफा की मर्मांतक चीख पूरे गांव में गूंज उठी और एक पल को सब थम गए। टाइगर तेजी से उछला और उसने पहले बिल्टू पर हमला बोला और फिर डब्बू सिंह की तरफ झपटा। चपेट में आया डब्बू सिंह का छोटा बहनोई छोटन सिंह। फूफा तड़प रहे थे, कटे पेड़ की तरह जमीन पर धराशायी। टाइगर का कहर जारी था, वह खूंखार हो चुका था। जिसे जिधर जगह मिली भागा या जा छिपा। डब्बू सिंह जीप लेके भाग निकला था। 2 कत्ल करके टाइगर वहां से भागता हुआ घर पहुंचा था। उसने फूफा का आंचल ही खींचा था। शायद उसे एहसास था कि दुनिया किसकी गुजर गई एक पल में। फूफा के शव के पास देर तक सिर झुकाए टाइगर ऐसे खड़ा था मानो कह रहा हो कि मालिक हम शर्मिंदा है कि हम आपको बचा नहीं पाए। वो हर जगह मौजूद था जहां जहां फुआ रही। फुआ को याद आया कि जब उनका सिंदूर धोया जा रहा था तो वे अपने बालों पर 1-2 बार हाथ रख देती थी तो नाई उनका हाथ बेरहमी से झटक देती थी। फुआ दोहरे दर्द से चीख पड़ती थी। टाइगर दूर खड़ा गुर्राता रहता, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आज एक बार फिर से सिंदूर पोंछा जा रहा है, तब भी दूसरों की मर्जी थी। आज भी किसी की शरारत पर सिंदूर पोंछते हुए फुआ को टाइगर की याद आई। गले से घुटी-घुटी सिसकी फूट पड़ी। माथा जरूर फुआ का लाल हुआ था, पर चेहरे सबके लाल हो गए थे। ऊपर सब शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर में सबके कुछ खदक रहा था। दालान में पापा समेत तीनों चाचाओं की बैठक चल रही थी। आंगन में फुआ ने ऐलान कर दिया कि वे इस घर में नहीं रहेंगी, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ से कल चली जाएंगी। उन्हें किसी विधि विधान से मतलब नहीं, उन्हें किसी विवाह संस्कार से क्या लेना देना, जब वे किसी रस्म रिवाज में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। बस दूर से तमाशबीन बनकर ही देखना है। वीरवार ये हिस्ट्री भी थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट जी मैं शॉर्ट करते नहीं मैं लास्ट वाला पढ़ना पढ़ देती हूँ। इसी तरह की घटनाक्रम आगे बढ़ती है और अब लास्ट वाला में हुआ के जिन पूरा परिवार बैठा है उनके भाग्य का फैसला करने के लिए। तो ये पन्ना बहुत लास्ट का है। दूर दूर तक फैला हुआ गंगा का पाट। कोन्हारा घाट पर बहुत चहल पहल थी। दूर गंडक नदी गंगा से मिलती हुई दिख रही थी। लोग बाग ठंड में भी डुबकी लगा रहे थे। धूप में रेत पर धुई जमाए कहीं पूरी भुजिया खाते लोग दिख रहे थे, कहीं लाल गमछा फैलाकर सत्तू का लोया बनाया जा रहा था जिसे अचार के साथ खाने की तैयारी में थे लोग। खुमचे वाले कचरी कर रहे थे, आसपास भीड़ लगी थी, हर तरफ भीड़। फुआ गायब हो गई घर से। उनकी खोज में उनका भाई निकला है, वो खोज के ला रहा है। भीड़ कुछ ज्यादा थी। कार्तिक माह में अपार भीड़ होती है। कार्तिक में गंगा स्नान की अलग महत्ता होती है। बुरोल बस स्टैंड से
बड़ी मुश्किल से टेम्पो में घुसाकर भटके चाचा हाजीपुर पहुंचे थे। गंगा स्नान करने और सोनपुर मेला में जाने वाले मेला घूमना को का पूरा हुजूम लगा हुआ था। यहाँ पे वो सीन है कि वो पुआ को खोजते हैं और किस तरह से खोजते हैं, वो कहाँ मिलती है, वो इंटरेस्टिंग है। जब वो खोज कर उनको लाते हैं तो पुआ के लिए एक अदालत उनके घर में लगती है। बाप बैठे भाई और जो भाई खोज कर लाता है, बाबा जो पुआ के पिता हैं उनको उनके बेटे कह रहे हैं, ये अंतिम पैरा है। आप बेटी को सहका रहे हैं, ज्यादा ही छूट दे रहे हैं, कहते हैं कि गांव में मंदिर बनवा दीजिए, भजन कीर्तन करेगी आप, पर आप मेरी बात कानी नहीं देते। घर में पाले हुए जवान लड़की कौन हर समय पहरा देगा। बाबा चुपचाप पुक्का को बुलाते रहे। बेटों के आगे बोलती बंद हो गई थी। मन ही मन बेटी पर कुपित हो उठे। सोच में पड़ गए कि क्या परमानेंट इंतजाम किया जाए। मन ही मन सोच रहे थे पर कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे। कोई भी फैसला वे अकेले नहीं कर सकते थे। तीनों बेटे की सहमति से ही फुआ की किस्मत का फैसला हो सकता था। बड़के चाचा दुर्गा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वे मंदिर का कोना कोना तलाश रहे थे और मन में प्रार्थना चल रही थी, हे देवी मैया, आप अब आपकी शरण में आए हैं, कितना दोहराओगे, मिल जाओ। यहीं पे उनको फुआ मिलती है। अब फुआ का बदलाव, फुआ जब घर आती है उनको पकड़ के लाते हैं, तब क्या होता है। फुआ का बदला हुआ क्रांतिकारी रूप देखकर सारे पटीदार हैरान रह गए। जिसके मन में जो आ रहा था बके जा रहा था। बाबा कुछ न बोले, फुआ को देखा और मुंह फेरकर अंदर। मझले चाचा ने दांत खिटखिटाकर कहा, क्या क्या न कहा। ये लास्ट है। छोटे चाचा आगरे नेत्रों से घूरे जा रहे थे। आंगन में फुआ के स्वागत की अलग अलग तैयारी थी। औरतों के मुंह से तरह तरह के फूल झरने बाकी थे। फुआ जानती थी कि उन्हें भूचाल का सामना करना पड़ेगा, सो उन्होंने अपनी आत्मा के कान और आंख दोनों बंद कर दिए। बंद करते करते आंगन की चाची के बोल जरूर कान में पड़ गए थे। बहुत विष चढ़ा था, भाग देखना छौड़ा के साथ भागल काहे कर रही थी गाने का, पूरा मंडलीय को धोखा, मती मारी गई का। खुद अपना होश है आपको कि समाज जगाइएगा। भजन मंडली होती तो कोई रोकता नहीं आपको। फुआ भजन मंडली की जगह समाज मंडली में चली गई थी जो जन जागरण का काम करता था। वो भजन मंडली में जाती तो उनको बड़ा अच्छा लगता। इससे अच्छा होता कि बाबा कहीं ब्याह ही कर देते, कोई ना कोई दू ब्याही मर्द मिल ही जाएगा। काहे घर में मुसीबत पाल रहे हैं, कब तक रक्षा कर पाएंगे। हम भी देखते हैं गाँव गाँव चिचियाएंगी तब बाबू साहब की नाक नहीं कटेगी का। मंडली में एक को भले घर का होगा, सब सर छोड़कर। दुनिया का सबसे सुरक्षित खोल है अपनी आत्मा का घर। जब उसमें घुस जाते हैं तो निर्भय निर्द्वंद हो जाते हैं। न किसी के कहे का दुख, न चुभन का एहसास, हर काटा बेअसर। इस आत्मस्थ स्थिति में फुआ घर में वक्त काट रही थी। उन्हें घर की इज्जत का हवाला देकर घर से बांध दिया गया। ताजा घटना के बाद फुआ ने घर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बाबा की ओर मुखातिब हुई, हम ससुराल की संपत्ति का कागज देखना चाहते हैं। हम आज तक देखे नहीं, कभी पूछा नहीं आप लोगों से कि खेतों में क्या हो रहा है, उपज का पैसा कहाँ जा रहा है। हमको अभी मतलब नहीं, बस हमें वो कागज दिखा दीजिए वसीयत का, जो अब तक आप लोग हमसे छुपा कर रखे हैं, जिसमें कुछ शर्त लिखी है, हम वो जानना चाहते हैं। कागज? छोटका चाचा चौके, हम कोई कागज लेके घूमते हैं क्या? नहीं घूमते हैं तो क्या हुआ? मालूम तो होगा नहीं क्या शर्त लिखी है कि आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। हम क्रिया खा के कहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होगा तो हम नहीं मानेंगे। आपको मनाने के लिए नहीं कहेंगे, हमको बताइए। लिखा है कि तुम्हारी सारी संपत्ति की देखरेख हम लोग करेंगे और जब तक तुम घर में रहोगी जीवन में तुम्हें खर्चा पानी देंगे। मझला भैया मुंह बनाकर बोले, यह भी लिखा है कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे अलावा कोई बेच नहीं सकता। बड़का भैया अटके, तुम्हारे लिए कहीं मंदिर बनवा देने को लिखा है जहाँ तुम जीवन के बाकी दिन भजन कीर्तन करते काटोगी। बाबा का स्वर ढीला था, उसमें पिता की कातरता थी। बाबूजी, हमको मंदिर नहीं चाहिए। कहाँ करेंगे मंदिर का? देश में बहुत मंदिर है, एक और बनवा कर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वसीयत में कुछ लिखा है, सब कुछ वही लोग तय करेंगे का? हमको अपनी मर्जी से जीना है आगे, हमको अपने लिए जीना है, हमको जीने का उद्देश्य मिल गया है बाबूजी। फुआ की आवाज जैसे खुल कर निकली। हम हाथ जोड़ते हैं, हमको नहीं चाहिए खेत पथार, हम क्या करेंगे ये सब लेकर? हमको मुक्त कर दीजिए, आप लोग हमसे मुक्त हो जाइए, हमसे अब घर में न रहा जाएगा। अब हमको बाकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए, कितना रुकिएगा हमको? फुआ ने हाथ जोड़ लिए। बाबा कांप रहे थे। मुझे हम विधवा आश्रम जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लूर सिखाएंगे, किसी लायक बनाएंगे उनको, आगे जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनकी मदद करेंगे। सुन रहे हैं ना आप? फुआ की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि एक बार भी बाबा हिल गए। उम्मा लड़की कब से इतना बोलने लगी, ये सोचकर भीतर भीतर हैरान और भयभीत हो गए। बहुत कुछ कहना समझना चाह रहे थे, अपने बेटों का मूड समझ गए थे। उन्हें चुनना था कि फैसला किसके हक में करे, किस्मत की मारी बेटी के पक्ष में या लोक लाज के पक्ष में, किधर जाए। फुआ के चेहरे को ध्यान से देखा, वे लगातार टकटकी लगाए बाबा की तरफ देख रही थी। उन आंखों में कई छायाएं थी तैरती हुई।
उनके भीतर कुछ अकस्मात विस्फोट सा हुआ हो, जैसे कोई द्रव सा बहता हुआ शिराओं में फैलने लगा था। वे ज्यादा देर झेल नहीं सकते थे। कहाँ? बाबा की आवाज मुश्किल से निकली, कोनहारा घाट। और कहाँ? अकेले कैसे करोगी माया? बाबा की द्रवित और चिंतित आवाज सुनकर फुआ मुस्कुराई। बाबा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत तेरे लोग हैं, आप चिंता मत करिए। बोलते हुए फुआ की आंखों में सोनपुर मेले का कोलाज घुमा। उन आंखों में कुछ चेहरे, एक आश्रम, एक सुरीली आवाज, एक किशोर जो रह रह कर उन्हें खींचता था। फुआ की हथेलियां कपकपा रही थी। देह की मुद्रा किसी धावक सी थी जो 1 2 3 सुनते ही रेस लगाने को तैयार बैठा हो। सिर से सफेद आंचल उतर कर कंधे पर आकर टिक गया था। बाबा ने बेटी के फैले हुए हाथ देखे। कलाई पर नाम पता लिखा हुआ गोदना गायब था। उस जगह जली हुई खाल सिकड़ी हुई गोल सी दिख रही थी। इससे पहले की आंखें बरसती हुक्का गुड़गुड़ा दिया। वह समझ गए थे कि गौरैया अब यहाँ बसेरा नहीं करेगी। फुआ ने छोरा, तीनों भाइयों उठाया। तीनों भाइयों की काया एक साथ ग्राह्य सी हरकत में आई। फुआ उनकी ओर गज नेत्रों से देखती हुई दालान की सीढ़ियां उतर गई। लंबी कहानी है, पर हो गया पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा। एक स्ट्रॉन्ग वुमन का एक फ्रेंड है। जी, अब हमारे लास्ट जो स्पीकर है डॉक्टर मानस रंजन महापात्रा। He is a noted poet in Odia. He also writes in English and Hindi for various age groups. He has 8 published books to his credit, besides various translated books in Odia. He has also edited several journals and compilations. Dr. Mahapatra has founded 2 major literary organizations in Puri, Sahibad Sandhya and Puri District Writers Cooperative Society. Besides associated with several literary bodies in different capacities, he served on the expert advisors panel visiting faculty at various national and international organizations, including Banaras Hindu University, Doordarshan, Asian Festival of Children's Content, Singapore. He is a recipient of Charujan Scheme of Science Academy and also received several awards like the Sarla Preet Kavita Samman, Chandrabhaga Kavita Samman, Bal Sahitya Samiksha Award, etc. He served as editor, National Book Trust, India, and is presently working as Director, Information, Public Relations, Art and Culture, Northeastern Council, Ministry of Donor, Shillong, Meghalaya. I welcome you, Dr. Manas Ranjan. किसी भी कार्यक्रम में अंतिम वक्ता या अध्यक्ष होने का कुछ फायदा है और कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है, पहले नुकसान कहूँ, कई बार ऐसे होता है कि श्रोता बहुत कम मिलते हैं। मैं साहित्य अकादमी में पिछला लगभग 25 साल से ज्यादा, बल्कि होगा सन 88, तो 28 साल से कई कार्यक्रम में आया थे, मतलब सुनने के लिए। आज सबसे मजा आ रहा था कि कई चेयर म्यूजिकल चेयर बन गए थे, एक उठा एक बैठा, और सबका, जितने हमारे साहित्य अकादमी में ऑफिसर्स हैं, सबका विजिटर्स चेयर अभी गायब है, क्योंकि सब विजिटर्स चेयर इस हॉल में आ गए हैं। मैं मित्रों में दिल्ली में 26 साल रहा। हाल में मैं शिलोंग गया हूँ। मैडम ने बताया, उत्तर पूर्वी परिषद में मैं निदेशक हूँ कला, संस्कृति और जन संपर्क का। तो जब वहां पहुंचा तो कुछ कविता मैंने लिखा। मैं इसको मूल भाषा में मेरा पढ़ूंगा। मैं उड़िया भाषी हूँ, ऐसे उड़िया, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में लिखता हूँ। पहले मैं उड़िया कविता पाठ करूंगा, फिर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो मैंने बनाया, बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको सुनाऊंगा जरूर। तो मैं उड़िया कविता में आता हूँ। कविता की शीर्षक है मुँह पे बादल है। थोड़ा सा उड़िया कविता की, काफी मित्र भी हैं जो उड़िया जानते हैं। मुँह पे बादल है।
ମୁଁ ଏବେ ବାଦଲରେ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡୁନି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଖବର କାଗଜ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସୁନି ଚା କପ୍ ଧରି ଇଡିୟଟ ବକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଭୋଗୁନି ट्राफिक ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦି ପେଗ୍ ମାରିଦେଇ ଜଲ୍ଦି ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଘରେ ମୁଁ ଏବେ ବାଦଲରେ ରହିଲେ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ବିଗତ ଦିନର କଥା ବହୁ ମରି ଯାଇଥିବା ସହର ହଜି ଯାଇଥିବା ନଦୀ ଠିକଣା ହଜି ଯେଉଁ ଅଜଣା ପୋଲ ଉପରୁ ଖରା ନଈକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ରେଳଗାଡ଼ି ନା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ସବୁ ଏବେ ମୋ ପରି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବାଦଲରେ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ସହବାସ ଲେଖା ଥିଲା ମୋର ଜାତକରେ କହିଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଭୂଖଣ୍ଡ ସହ ସହବାସ ଲେଖା ଥିଲା ମୋର ଜାତକରେ କହିଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ହସରେ ପଣ୍ଡିତ କଣ ସତ ହେଲେ ନା ମୋର ଭବିତବ୍ୟ ନା ଏ ଜନ୍ମରୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାର ରୂପ ନା ନୂତନତାର ସନ୍ଧାନରେ ଚିରକାଳ ଭୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଚାରିପାଖରେ ବାଦଲ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀର ବାଦଲ ମାନଙ୍କର ଥାଏ କି ଧର୍ମ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବାଦଲର ସେଜ ଚୌକି ଟେବୁଲ ଗଛପତ୍ର ପବନ ପାହାଡ଼ ମୁଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବାଦଲ ଖୋଜି ବୁଲେ ବିଲୁପ୍ତ ନଅର ଖୋଜି ବୁଲେ ବିଲୁପ୍ତ ନଅର Now the English translation. Rough rendering, you can say rough rendering. I am on the clouds now. I am on the clouds now. Not reading newspapers from A to Z every morning, or sitting before the idiot box in the evenings with a cup of tea on hand. My suffering from pain of waiting in the traffic is over, and I am no more eager to reach home early after gulping 2 quick takes of whiskey in the pool car. I am on the clouds now. You forget your gone days when on the clouds. Many dead towns, dried rivers, trains without destinations, fallen from broken bridges to rivers, and nameless people, I find all on the clouds. To be in no existence with an unknown world, to be in coexistence with an unknown world was written on my forehead. Thus said the astrologer. And I just laughed. Had the astrologer been correct? Or my fate? Or else my journey from this path to the next? Or it is in fear and romance in search of newness? Clouds do not have any caste, creed or religion. Clouds everywhere now of various patterns. Beds of clouds, clouds on the chairs, tables, trees, mountains, and in the wind. I am a wonderful cloud now. Look out for my lost castle. मैं और है अंग्रेजी ट्रांसलेशन है मैं हिंदी कविता में हिंदी अनुवाद भी आता हूँ इसका हिंदी अनुवाद कई लोगों ने किया है राजेंद्र मिश्रा ने भी किया है सुजाता सिवन ने भी किया है और सैलवाला महापात्र जी ने भी किया है मैं सैलवाला महापात्र जी का अनुवाद पढ़ रहा हूँ सपने बदल जाने दो बस इस बार सफर खत्म होने पर मुलाकात होगी तुमसे बस इस बार सफर खत्म होने पर मुलाकात होगी तुमसे बदलेगा ठिकाना चेहरा शहर शायद मैं पलट जाऊंगा बिजली के खंभे से सरसों और तुम अज्ञात गली से महानगरी के लाल हरी बत्ती वाला चौराहा मिलने पर कौन किसे करेगा पहला संवाद मिलने पर कौन किसे करेगा पहला संवाद पुरानी आत्मीयता या नए रिश्ते का आंखों ही आंखों में करेंगे बातें कौन सी भाषा कौन सी लिपि में कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिपिबद्ध करेंगे उसे आने वाली यात्रा की घोषणा हो गई होगी
उम्र को देखते देखते तिरछी नजरों में। मौसम बदल जाने दो, कहीं ना कहीं इस बार यकीनन मुलाकात होगी तुमसे। बस इस बार सफर खत्म होने पर मुलाकात होगी तुमसे। मैं और एक कविता में आता हूँ, इसका भी अनुवाद काफी मित्रों ने किया है। मैं सलमान मोहम्मद के अनुवाद पढ़ रहा हूँ। सड़क के इस पार से जाना होगा मुझे उस पार, सड़क के इस पार से जाना होगा मुझे उस पार, तुम मेरे साथ रहो। सड़क के इस पार है एक अज्ञात जगत, सड़क के उस पार है एक अज्ञात जगत, इस पार से अलग और नया बेसुमार ख्वाबों का इतिहास, प्रतिश्रुति से है बंधा, टूटे फूटे शब्दों की भीड़, कुछ कोहरा कुछ धुआं। सड़क के इस पार से उस पार जाने का मेरा यह स्वप्न है कड़े लंबा का। पहले स्वप्न देखने का समय कभी नहीं था चारों तरफ का यह धरा मंडल, पर सड़क थी तुम और हम भी। कौन जानता है कल होगा या नहीं आज का सूरज, पर सड़क होगी तुम और हम भी। निर्विकार सेतु अंधहीन यात्रा का, इस सड़क के साथ मुझे आगे जाना होगा, इस सड़क के साथ मुझे आगे जाना होगा, लाना होगा इस पार से उस पार। डर नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो। हवा के सामने सीना तान कर, इतने सालों के बाद भी बदला नहीं है चेहरा मेरा। गीता से और हम एक दूसरे को पिछला बहुत साल से जानते हैं, तो गीता से बता सकती है कि मेरा चेहरा बदला ही नहीं। और भी कई मित्र हैं, मैं कह रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, इतने सालों के बाद भी बदला नहीं है चेहरा मेरा। पक गए बाप, मूंछ कुछ काली कुछ सफेद, बढ़ा है पेट, पहने है चश्मा, इतने सालों के बाद भी बदला नहीं है चेहरा मेरा। पहले पैदल घूमता था सारा शहर, अब एक कदम पर फूलती है सांस। शायद हो गया हूं कुछ मोटा भी, शायद हो गया हूं कुछ मोटा भी, पर चेहरे से मिटी नहीं है वही पुरानी चिड़ी माता हंसी। कुछ दिनों से चिड़ियों को उड़ने से मना कर दिया गया है इस शहर में। कुछ दिनों से चिड़ियों को उड़ने से मना कर दिया गया है इस शहर में, पर मैं उड़ने के ख्वाबों में चिड़ियों को परख रहा हूँ। मेरा चेहरा नहीं बदला है, मेरा चेहरा नहीं बदला है, इसलिए खुली जा रही है सभी खिड़कियां। मैं चिड़ियों के साथ हवा के सामने खड़ा हूँ, सीना तान है, सीना तान। इसका अनुवाद किया है सुजाता सिद्धन ने। मैं फिर एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन में आता हूँ। ये मेरे पिताजी के लिए है, जो दिन में 10 अखबार इस तरफ से उस तरफ तक पढ़ते थे, वो आज नहीं है। मैं इसका उड़िया नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को क्यों ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मैं सीधा अंग्रेजी में आता हूँ। इसका भी रफ ट्रांसलेशन मैंने किया है, कैसे हुआ है आप बताएंगे। Wake up, won't you read newspapers? You have been in sleep for years. Wake up, won't you read newspapers? You will get many things new in these newspapers. Information on the market and price, accidents, manifestos, politicians' business, gimmick of advertisements, publicity of new products. Are you looking for news on your Quit India movement prison story during emergency in these newspapers? Don't you know now fight is only in the speeches and people's voice is in the pocket of the government, and news in the cocktail parties.
Would you like to go to the stage? Would you like to go to the stage and tell about the nation without national character, persons without morality? This is a very favorite dialogue of my father. Would you like to go to the stage and tell about the nation without national character, persons without morality? Tell me, who will listen to your speeches? When you go to the stage, you may have thought to speak many things, and when you get down, you may regret that you could not speak all that you thought of. Some still remain. Had you spoken the truth, would you have changed the fate of the currency notes distributed in the preceding night of election? The house of illiterate people carried by vehicles to vote for political party, or the sorrows of school children waiting for hours in summer heat to welcome the great leaders? But after you went to this anonymously, nobody thinks of these matters at all. And our people are in the queue for cheap government favors. Now wake up, read newspapers. Wake up, read newspapers, write letters to the editors, carry a lantern like Socrates in broad daylight, and call them to join you in your struggle. I used to be in a house in my childhood which was not ours, and it was taken over by the owner and everything, so I still remember that house. The lost castle. Why I remember again and again that house, my lost castle at the seashore. Dreams and dreams in the hut, and the lips full with exclamation, listening the music of sea there, everything smiling with love. And how much drowsiness in the sand, with memories, hide and seek play in light and darkness. At the other side of the castle, a crowd of sails and crafts, and a few yards away by the jungle of Casuarina, where foreign birds fly, the castle used to save me from tempest. Then I didn't know that the castle is not my own. It accepted my wickedness of childhood. How could I know a Calcuttan merchant who could it much before? He came one day. He came one day with arms and ammunition. I didn't have a force or arms either. He snatched me from the lap of my castle and threw to the hill of sands. I looked for me since then in the jungle of life, soaked in crying laughs. That castle is no more there. That castle is no more there. In fact, that place is now some hotel in Pune. That castle is no more there. Now at its place stands a casino. Sea has moved backward a few steps. Sand with sails has turned concrete jungle. Around me in this beautiful city, dreams correlate every day. But nothing makes me happy, and my eyes look always for my lost green castle. Thank you. We should leave today with lots of nice memories of our meetings. And if any of you would like to ask our if any of you would wish to ask our poets and writers, Or observe. You're most welcome. We have maybe 5 minutes to that. First of all, thank you so much for such a wonderful time. Listening in different languages is a thrill for everybody who is interested in the pursuit of knowledge, etc. Surely some questions to ask. First to Dr. Mohammed. I noticed that I am on the cloud ends with my lost castle. And then the lost castle which explains somewhere down the line I see
an interconnectedness. Am I missing the point, or is it on purpose? Well, you are very right, sir. I wanted to connect these two after many years. Always there is an ambition in life. You can say it's a great Pabo, Beshumar Pabo. So, you always look for something. Maybe a castle, maybe something. And whenever you are in the clouds, you also look for that. Clouds is some sort of imagination, some sort of happiness. Even I have also talked of dry rivers, dead cities. So you are very correct that there is some connectivity. One just question, was there a purpose to production of names in your story? And why does the name appear so late for the Kufa? इसलिए लेट की मैं चाहती थी कि मैं कोई लेख नहीं लिख रही थी कि शुरू में बता दूं, या नाटक नहीं था कि पात्रों का परिचय शुरू में दूं। कहानी अपनी गति से जब बढ़ती है तो नाम भी उसके साथ साथ आते जाते हैं। इसलिए हर कहानी में आपको लिखेगा, कहानी पढ़िएगा तो जब कहानी लिखी जाती है तो नाम या तो किसी के मुंह से कहलवाते हैं या संदर्भ में वो आते जाते हैं। तो इसमें जानबूझकर सारे नाम पढ़ते हैं। So, why the character of Gajendra is very Gajendra. So, why it's it is Gajendra. So, why the character is so I was just wanting to see who is the So then Konark becomes him. कहानी के अंत में आपको पता चल गया होगा कि कौन लोग क्रोकोडाइल थे, किसके जगह में वो फंसी हुई थी और कैसे निकली। तो कहानी का अंत आपको नहीं थी। एक बात कहना चाहूँगी, आज कहानी तो बहुत अच्छी थी पर दलाल बड़ा की पूरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। May I make a small observation? The observation जी the crocodile in the original story is called Maya. Unfortunately. जी इस कहानी में रेणु है ही नहीं। इस कहानी में इस कहानी को ठीक से समझने की जरूरत है कि देखिए, अगर पात्र जिस परिवेश का होगा भाषा थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन जो भाषा मैंने इस्तेमाल की वो टूटी हुई हिंदी थी, वज्जिका कम थी। ऐसा नहीं है, जहाँ पे थी उसके तुरंत बाद मैंने सपोर्टिव लाइन दी है उसमें। एक तो ये, दूसरा रेणु का प्रभाव इस कहानी में कतई नहीं है, न ठाकुर का अत्याचार, न बदला और न उस तरह का बिल्कुल नहीं। इसमें एक स्त्री के अब सामंती व्यवस्था से, सामंती परिवेश से मुक्ति के संघर्ष की कहानी है पूरी की पूरी। और आप उस इलाके को जानते हैं तो जानते होंगे कि जिस इलाके की कहानी है वहाँ स्त्री किस तरह से सामंती परिवेश में उसका दम घुटता है और किस तरह से गिलों के साथ व्यवहार होता है। तो वो उसके स्ट्रगल की कहानी। दूसरी ये कहानी एक स्त्री के मंदिर और भजनों का निषेध करके सामाजिक जन जागरण से जुड़ने की कहानी है। इसलिए ये कहानी मैंने कही, मेरी कहानी किसी दूसरे को होती तो मैं बहुत अच्छा बोलती इस पे कि बहुत बड़ा फलक है, बड़ा कैंवस है। इस कहानी में मंदिर और भजन, क्योंकि स्त्रियों के लिए ज्यादातर मानते विडो हो गई है तो वृंदावन भेज दो इनको, भजन कीर्तन राधे राधे करेंगी, ये कहानी उसके खिलाफ भी खड़ी होती है। हम तो भाषा पे बात कर रहे थे, आप उसके अच्छा नहीं, वो था ना रेणु, आपने कहा रेणु, इसलिए भाषा पे मैंने कहा कि अगर नायिका अपढ़ है तो उसे क्या उम्मीद करेंगे कि उसकी भाषा में अंग्रेजी या शुद्ध हिंदी कैसे आएगी। आज भी आप बिहार को मिला
इलाकों में जाइए तो हिंदी भी ऐसे बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, आइबे किए हैं, बैठबे किए हैं, खाइबे किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस परिवेश की कहानी हो उसका जरा भी टच नहीं हो, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। अगर शुद्धतावादी लोग कहेंगे तो आगे से हम अंग्रेजी और हिंदी में डालेंगे। आप जारी रखिए, स्त्री आक्रोश और विद्रोह में हमेशा अपनी बोली में एक होती है और भाषा में। If I may say something, you know what? What I want to compliment you, Geeta Shridi, is that you've taken a very localized local place, and your story has risen to universality because the kind of treatment you've given, because this is universal position of a woman with little here and there, everywhere, not only in India but all over the world. I can vouch for it. And making it colloquial actually gives strength to the story. That's what I want to say. Thank you. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनमें है कि अगर वो मजबूती देती है कहानी को तो एक छोटे से दायरे में सिमेंट के नहीं रख देती है। आपने इतना मजबूती जी बजीका के आपने इतने शब्दों का प्रयोग किया, उसने इतने शब्दों का प्रयोग किया। जैसे अभी मैं हलाला पढ़ा था भगवान दास मोरवाल के, तो मेवात के इतने शब्दों का प्रयोग है। मतलब लोकल के नाम पे, स्थानीयता के नाम पे भाषा के साथ इतना अत्याचार इतना होता है कि पढ़ने के लिए फुटनोट लगाने पड़ते हैं। जवाब पहले दे चुकी हूँ, लेकिन जो भाषा का आतंक कह रहे हैं प्रभात जी, ये मुझे अपनी छुपी हुई जमीन पाने की ख्वाहिश हो सकती है, या मेरे दिल का कोई कचोट हो सकता है कि मैं उस मिट्टी से दूर हूँ, या मैं अपने बजीकांचल को प्रमोट करना चाहती हूँ कहानियों के जरिए। मैं उस परिवेश को लाना चाहती हूँ तो जब दुख में होती हूँ तो उसी भाषा में रोती हूँ ना। कहानी को दुख प्रकटीकरण का माध्यम बनाया है। थोड़ा सा मुझे नहीं गीता मैं बताऊं, मैं पूरी कहानी को जितना गीता पढ़ी मैं पूरा समझ पाया। मैं बल्कि बजीकांचल का भाषा के साथ मेरा बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि जब हम कहानी सुनते हैं तो हम कई बार कहानी के साथ मिल जाते हैं। केवल समय ये दिक्कत था कि एक्चुअली कहानी नहीं थी, छोटी सी उपन्यास थी और इसके लिए फुल सेशन चाहिए था, पूरा 1.5 घंटा चाहिए था। हम बहुत बात करते क्योंकि कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। केवल यही था कि वो बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट एक उपन्यास थी। हाँ, अदरवाइज जो भाषा है, भाषा जब आप कहानी के साथ मिल जाते हैं ना, भाषा बहुत कुछ माने नहीं है। एक सवाल आपने जब काफी विवाद मुद्दों पे कहानियां लिखी, कभी आपके ऊपर एक लेबल लगाया गया था कि आप बड़ी बोल्ड कहानियां लिखती हैं। आज आप अपने लोकल को उठाकर बिल्कुल स्थानीय भाषा में वहाँ की स्त्री का दर्द रखती हैं, तो आप हम जैसे नए रचनाकारों को बताएंगे इस तरह से जो लेवल लगता है उस तरह से बच्चे में किस तरह से उनकी बात है। देखिए कथा में रेंज बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो मैं लोगों को बताना भी चाहती थी कि मैं हर तरह की कहानी लिख सकती हूँ और मेरा लोक मुझसे छूटा नहीं है, क्योंकि वही तो मेरी ताकत भी वही है, मेरी कमजोरी भी वही है। जो बोल का उस पर तो नहीं बात करूँ, क्योंकि ये तो नजरिए का फर्क है, पता नहीं किसको लगा और वो किस तरह के लोग थे जिन्हें ऐसा लगा, तो वो अपनी सोच पर पुनर्विचार करे। मतलब मुझे आग्रह है उनसे कि वो जरा व्यापक होकर को न बनाए, जरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और अपने समय को पहचाने। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोग की कहानी लिखी गई पहले भी हुई। देखिए मेरी पूरी कहानियां जो कथा संसार आलोचक क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन वो सारी एक स्त्री के दुख का प्रकटीकरण नहीं, एक स्त्री का पुरुष सत्ता को चुनौती है, जिसको आप जिस तरह से देखना चाहेंगे।